لقاء اللہ کے اسباب، اللہ سے ملاقات کے اسباب. اب اس پہ بحث تھوڑی طولانی ہے، میں مختصر بیان کروں گا. آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب میزان الحکمہ میں آپ کو یہ پوری گفتگو مل جائے گی. کتاب میزان الحکمہ میں آپ کو یہ گفتگو مل جائے گی، جلد نمبر 8 میں آخر میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کے متعلق کافی روایت ملے گی. میں صرف مختصر بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات کا اشتیاق. دیکھیے اللہ سے ملاقات کا اشتیاق کیا کیا اسباب ہیں. اب ایک روایت بیان کرتا ہوں، حضرت جناب داؤد سے ایک روایت ہے. یعنی اس میں دیکھیں بیان کیا کرنا چاہتے ہیں پروردگار، یعنی جناب داؤد سے جو خدا کی گفتگو کیا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات رکھنا چاہتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں ہم اپنے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں کیا دیا ہے اور ان میں کیا صفت ہے. جب اللہ نے کہا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو میں نے مطلب ابھی روایت پڑھتے ہیں تو آپ کو بیان کر. جناب داؤد کے متعلق حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی، اے داؤد میں نے اپنے مشتاقان یعنی مجھ سے جو ملاقات کرنے والے ہیں، میرے مشتاقان دیدار یعنی ملاقات کرنے والے کے دلوں کو رضوان یعنی دلوں کو اپنی رضوان، یعنی اب خدا بیان کر رہا ہے رضوان ایک فرشتہ ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو، اس سے خلق کیا ہے اور اپنے رحمت کے نور سے ان کو سرفراز کیا. یعنی خدا نے کن کے دلوں کو، اب آئے گا، وہ افراد کے جو خدا سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں، اللہ نے اچھا وہ جو بے چین ہیں پروردگار نے کہا وہ لوگ، ان کے دلوں کو میں نے اپنی یعنی اپنے نور کے رضوان، ایک فرشتے کا نام ہو سکتا ہے کہ اس سے خلق کیا ہے اور اپنی رحمت کے نور سے ان کو سرفراز کیا ہے. اب جناب داؤد نے پوچھا کہ ان لوگ یہ اعزاز انہیں کیوں ملا ہے، یہ نور کا سرفراز ان کو، یہ چیزیں تو نے 2 چیزیں عطا کی ہیں، یہ ان کو یہ جو 2 چیزیں جو عطا ہوئی ہیں کیا وجہ تھی کہ تو نے ان کو یہ اعزاز دیا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے، گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے. جناب داؤد اور خدا کی گفتگو ہے. خدا نے کہا کہ میں نے ان افراد کو نور رضوان اور نور رحمت سے یہ 2 چیزیں ان کو دی ہیں. تو داؤد نے پوچھا وہ کیا کرتے تھے، یہ اعزاز ان کو کیوں ملا. اب خدا جواب دیتا ہے. خدا کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، نمبر 1 مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں. یہ حسن ظن کیا ہوتا ہے، یہ حسن ظن کیا ہوتا ہے، خدا پر حسن ظن کا کیا مطلب ہے، یعنی کیا مطلب، ایک ایک کر کے، یعنی کیا مطلب ایک ایک کر کے. ہاں نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مجھ کو جیسا گمان کرو گے ویسے ہی پاؤ گے، تو جو لوگ اس کے اوپر گمان کرتے ہیں اچھا اس لیے. اور کوئی بتائیں گے، مطلب جو کچھ خدا ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور یعنی خود یعنی دیکھیں مجھ سے حسن ظن کا مطلب ہے کہ خدا یعنی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو میرے لیے اچھا رکھتے ہیں، یعنی خدا ہمارے لیے اچھا کرے گا. یعنی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کرتے خدا تو نے ہمارے لیے کیا کر دیا، یہ بہتری کی امید رکھنا، خدا سے بہتری کی امید رکھنا، اچھی امید لگانا، مختلف نام دے سکتے ہیں. خدا ہمارے یعنی کبھی بدگمان نہ ہو خدا سے. دوسری طرف یہ جملہ ہے، یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ پروردگارہ تو نے کہاں پھنسا دیا، خبردار تو ہمارے کو مشکلات ہی ہاں بیڈ جملے وہی مراد ہے. ہاں وہی مراد وہی ہے کہ حسن خدا کہتا ہے کہ یہ جو ان کو جو میں نے 2 اعزاز دیے ہیں نا، یہ اس مقام جو دیا ہے ابھی اور آئے گا، اور خدا نے ان کو کیا کیا دیا اور آئے گا آگے. اس کی پہلی صفت کیا ہے، یہ خدا سے اچھی امید لگاتے ہیں، اچھے سے امید لگاتے ہیں. نمبر 1. 2 خدا کہتا ہے کہ ان کو میں نے یہ اعزاز کیوں دیا. 2 دنیا اور اہم دنیا سے کنارہ کش اختیار کرتے ہیں. یہ لوگ وہی جن کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی وسعت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ اعزاز دیا ہے. دوسری صفت کیا ان کی، سر ایسا بھی تو کہا جاتا ہے کہ اس کو تو چھوڑ ہی دو، یہ ایسا ہی رہے گا. یعنی کیا مطلب سمجھا نہیں، یعنی دنیا میں کچھ لوگ تو عمل کرتے ہی نہیں. ہماری بحث وہ نہیں ہو رہی. نہیں دیکھیں ہم نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں. ایک مثال کے طور پر خدا حضرت داؤد سے کہا کہ میں نے یہ افراد مثلاً اب یہ نہیں بتایا، یہ افراد جو ہیں اے بی مثلاً، ان کو میں نے رضوان سے خلق کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو رحمت کے نور سے خلق کیا، ان کے دلوں کو. تو داؤد نے پوچھا کہ یہ 2 اعزاز ان کو کیوں دیے.
बात समझ में आ रही है? आप समझ में आ रही है? यानी खुदा ने कहा ये वो अफराद हैं, इशारा किया मसलन ये है कि इनको मैंने इस तरह एजाज़ दिया है, यानी रहम खल्क किया है, रिजवान से खल्क किया और रहमत। तो दाऊद ने पूछा इनमें क्या खुसूसियत थी, इनमें क्या खुसूसियत थी? तो क्या खुसूसियत थी इनमें क्या खुसूसियत थी? तो क्या कहा? अब खुदा जवाब दे रहा जनाब दाऊद कि उनमें क्या खुसूसियत थी। पहली खुसूसियत क्या थी कि ये लोग मुझसे अच्छी उम्मीद रखते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं, यानी मेरे मुतालिक गुमान अच्छा करते हैं कि अल्लाह अच्छा हमेशा अल्लाह अच्छा करेगा। जितने भी परेशान होते हैं, जितने, अब मैं आपको तशरीह करूँ कि जितने भी ये परेशान होते हैं, जितने भी मुश्किलात में आते हैं, ये कभी मुझसे बदगुमान नहीं होते, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कि बस खुदा अच्छा ही करता है। कभी खुदा न खासा ये नहीं कहते मसलन कि खुदा तूने कहाँ हमें मुश्किलात में डाल दिया, तू ऐसा है, तू जुल्म करने वाला है, माज़अल्लाह तू ऐसा करता है, तूने ऐसा क्यों किया, ये सब नहीं। खुदा कहता है कि ये हमेशा मुझसे अच्छी उम्मीद लगाते हैं। ठीक है, एक। दो, कहा कि दुनिया, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया से किनारा कश है, इनका असल दुनिया से मोहब्बत नहीं है, दुनिया की ख्वाहिश नहीं, दुनिया की मोहब्बत नहीं, दुनिया से किनारा कश है। दो। तीसरा क्या है? खुदा कहता है तीसरी सिफत क्या है इनमें? तीसरी सिफत ये मुझसे खलवत करने के, जब मुझसे ये खलवत में होते हैं तो मुझसे गुफ्तगू करते हैं, यानी मुनाजात करते हैं। जब ये खलवत में होते हैं तो मुझसे मुनाजात यानी मुझसे गुफ्तगू और मुनाजात करते हैं। इनकी तीसरी सिफत ये, जब ये तनाई में होते हैं तो क्या करते हैं? मुनाजात करते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं। ये इंसान दुआ करे, ये बहुत अहम नुक्ता है। यहाँ पर मैं एक नुक्ता और बयान कर दूँ जनाब शोएब का। जनाब शोएब के मुतालिक कितनी मरतबा उनकी बीनाई आई थी वापस, मालूम है आपको? जनाब शोएब इतना रोए, इतना गिरिया किया कि उनकी एक बीनाई चली गई, अल्लाह ने दोबारा बीनाई दी, फिर इतना गिरिया किया। 3 मरतबा लिखा है कि 3 मरतबा उनकी बीनाई खुदा ने, और खुदा ने कहा यूसुफ जनाब शोएब से इतना क्यों रोते हो? अगर तुम्हारा ये रोना जहन्नम के खौफ से है तो जहन्नम से अमन है, अगर जन्नत के शौक़ में है तो जन्नत तुम्हारे लिए। तो जानते जनाब शोएब ने क्या कहा? जनाब शोएब ने कहा परवरदिगारा, ना ये गिरिया मेरा जन्नत की ख्वाहिश से है, ना जहन्नम के खौफ से, बल्कि किससे है? कहा ये गिरिया मेरा मुझे तेरा दीदार करने के लिए। ये दीदार यानी खुदा के इंसान के अंदर एक इश्तियाक हो, शौक़ हो कि मैं खुदा को देखूँ। अगर अब सवाल आएगा क्या खुदा को देखने की चीज़? नहीं, खुदा देखने की चीज़ नहीं है, लेकिन इश्तियाक हो। अब इसका सवाल का जवाब आपको मीज़ानुल हिकमा की उन रवायतों मिलेगा जो मैंने आपको हवाला दे दिया, वहाँ जाएँ, इन सवाल का जवाब कि वहाँ मुलाकात से क्या मुराद है। बाज़ जगह पे वहाँ रवायत मिलेंगी आपको, मैं से मुख्तसर बयान कर रहा हूँ एक मौजू के तहत कि कम से कम इंसान ये पता चले इन रवायात में कि कुछ चीज़ें हैं कि जो इंसान अल्लाह से अगर दीदार का इश्तियाक रखता है, शौक़ रखता है, तो उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होंगी, फिर अल्लाह उन्हें क्या देता है। तीसरी चीज़ क्या बयान की? मुझसे खलवत में गुफ्तगू करने के बाद मुझसे मुनाजात करते हैं, यानी तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी सिफत क्या है? मुनाजात, अल्लाह से बातचीत, अल्लाह से मुनाजात। फिर खुदा कहता है कि इस मंजिल तक वही पहुंच सकता है जो दुनिया और अहले दुनिया को छोड़ दे। अब आइए यहाँ पर मिसाल है, दुनिया और अहले दुनिया को छोड़ दे, यानी वो मंजिल, वो मकसूद आएगा, अभी वो बयान आएगा कि ये खुदा कहता है ये उस मकाम तक वही लोग पहुँचेंगे, यानी मकाम बता दिया कि जिनके दिलों को हमने रिजवान से खल्क किया, रहमत नूर से, ये वहाँ तक वही लोग पहुँचेंगे जो दुनिया को और अहले दुनिया को छोड़ दें। अब आइए माशरत की मिसाल, हम लोग किस माहौल में हैं? हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी में? अच्छी लाइफ स्टाइल हो जी, अच्छा लाइफ स्टाइल हो। नहीं, अच्छा लाइफ स्टाइल तो वो तो अलग चीज़ है, और भी कुछ कहते हैं ना। अगर ऐसा ना करें तो क्या कहते हैं? दुनिया वाले क्या कहेंगे? और अल्लाह कह रहा है कि दुनिया वालों को छोड़ दो, ये अहले दुनिया वालों को छोड़ोगे तो वो मकाम मिलेगा। आज हम जी जैसे हम कहते हैं कि दुनिया को छोड़ दो, हाँ, वो मिसाल सही है, ठीक है, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना, फ़र्क है दोनों में, फ़र्क आएगा। दुनिया से छोड़ने से मुराद क्या? ये भी एक बहस है। मुराद ये नहीं कि आप पहाड़ों पे चली जाएं, इमाम तो यही कहते हैं कि पहाड़ों पे चली जाओ, नहीं पहाड़ों पे नहीं जाओ, फिर इसी में परहेजगारी। हाँ, तो वही तो बात है, वहाँ पे भी यही है, ये मुराद भी यही है। दुनिया से छोड़ने से मुराद क्या है? पहाड़ों पे जाना नहीं है, जंगलों में जाना नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं है, औलाद को छोड़ना नहीं है, बल्कि क्या मुराद है? दुनिया को छोड़े, दुनिया की रंगीलियों को छोड़े, दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़े, गुनाहों को छोड़े। दुनिया में जो लोग कह रहे हैं अगर आपने शादी में ऐसा नहीं किया
تو دیکھیے دنیا والے کیا کہیں گے. یہ دنیا والے جو کہیں گے انسان اس کی پرواہ کرتا ہے, اللہ کی پرواہ. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ مقام انہی کو ملے گا کہ جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس کوئی آئے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے ایسا کیا, دیکھیں اہل محلہ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, تو جو لوگ ڈرتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ہاں یار آپ کہہ تو صحیح رہے, کیا کریں, آپ تو کہے تو صحیح رہے, میں کیا جواب دوں گا. جو لوگ اللہ والے ہوتے کہتے ہیں کہنے دو جن کو, ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے, ہم اپنے خدا کو جواب دینا ہے. یہ خدا ان کی بات کر رہا ہے, یعنی دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے. کام اللہ کے مطابق ہوگا, حکم خدا سے مطابق ہوگا, اللہ کی رضایت کے لیے ہوگا, تو اہل دنیا کو چھوڑ دیں گے. اہل دنیا کی مراد یہاں پر یہ مراد ہے, نہ کہ انسان پہاڑوں پہ چلا جائے اور غاروں میں جا کے زندہ, نہیں, بلکہ دنیا میں رہے, اسی دنیا میں رہ کے پرہیزگاری حاصل کرے, اسی دنیا میں رہ کر انسان اللہ کی عبادت کرے. ٹھیک ہے, آئیے پھر اس کے بعد خدا جو کہتا ہے, ٹھیک ہے, دنیا کے ذکر اور اذکار کو فراموش کر دے. دیکھیں بار بار دنیا کا ذکر آ رہا ہے, وہی دنیا کی پرواہ نہ کرے, دنیا کے ذکر اور اذکار کو فراموش کر دے. پھر اپنے دل کو میرے لیے خالی کر دے. دیکھا خدا کیا چاہتا ہے آپ سے, دل کو پاک رکھے, خالی کرے. یعنی خدا کہتا ہے کہ اپنے دل کو میرے لیے خالی کر دے. خالص نہیں, خالی. جو خالی ہوگا تو خالص بھی ہو جائے گا. خالی, کچھ نہ ہونا, یعنی صرف خدا کہتا ہے اس کے دل میں ہوں, اور اس کے بھی اجر, اس کا بھی دنیا کے اندر کمال ہے. اچھا سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف خدا دل میں ہو سکتا ہے, کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیں بچوں کی محبت, ماں باپ کی محبت, اہل بیت کی محبت, فرض کریں سب ہے نا, یہ سب الگ الگ نہیں ہے. تو وہ تو کیٹیگری ہو گئی. نہیں, اس حکم خدا کی محبت کے ذمے ایک ہی محبت ہے. خدا نے کہا ماں باپ سے محبت کرو, خدا نے کہا اولاد سے محبت کرو, خدا نے کہا اہل بیت سے محبت کرو. تو یہ ایک ہی حکم خدا ایک ہے جس کی یہ کڑی ہے ساری, یعنی وہ رسی. ہاں وہی ہے. یعنی کوئی یہ نہ کہ ماں باپ کی محبت الگ ہو گئی, اب میرے پاس تو ایک ہی دل ہے, تو میں ماں باپ کی محبت رکھوں, بیوی کی محبت رکھوں, بچوں کی محبت رکھوں, کس کی محبت رکھوں, اللہ کی محبت رکھوں. ایک دل میں اتنی ساری محبت تو نہیں آ سکتی. تو جواب کیا ہے اس کا, نہیں, محبت ایک خدا کی ہے. اس خدا نے جو کہا ہے وہ تمام وہی کا ہے. جو خدا نے کہا سب سے پہلے اہل بیت کی محبت, خدا کی محبت, اہل بیت کی محبت, ماں باپ کی محبت, بچوں, یہ اسی کے ذمے اندر ساری محبت ہے محبت ایک ہی. بہت سے لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے ایک محبت وہ نہ ہو, مال کی محبت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو خدا یہ کہتا ہے کہ اپنے دل کو میرے لیے خالی کرو. کیا مطلب, میں ہوں تمہارے دل میں, بس میرے علاوہ کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے جب خدا انسان کے دل میں آئے گا تو خدا کی اطاعت بھی ہوگی, خدا کی مناجات بھی ہوگی. جب خدا کی اطاعت ہوگی تو بات وہی آ جائے گی. خدا نے کہا ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی محبت, بیوی بچوں کا خیال کرو, بیوی بچوں کا خیال کرو. دیکھا آپ نے, یہاں پہ تمام وہ چیزیں آ جائیں گی جو خدا کے اطاعت کے مطابق ہوگی. تو محبت ایک, کیونکہ قلب ایک ہے, ظرف ایک ہے, تو ایک ہی محبت آ سکتی ہے, وہ ایک خدا کی. خدا کہتا ہے یہ اپنے دل کو میرے لیے خالی کرو, مراد میں آؤں, کوئی اور نہ, یعنی یہاں مراد کوئی اور نہ, مراد دنیا ہے. دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, مال کی محبت نہ ہو, عزت, شہرت, مال, حسن و جمال, یہ سب نہ ہو, خدا ہو. جب خدا ہوگا تو باقی ساری چیزیں اچھا جائیں گی. لیکن اگر ساری چیزیں یہ ہوں گی, مال, دولت, عزت, شہرت, تو پھر خدا نہیں ہوگا ادھر. کوئی سوال ہے؟ سر آج کل تو یہ سب چیزیں پہلے نمبر پہ رکھی. ہاں, تو یہی تو غلط ہے, یہی تو سمجھانا ہے. خدا یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو یہ اعزاز دوں گا. ابھی اور اعزازات آئیں گے خدا کے, اور تحفے آئیں گے, ان کے تحفے آئیں گے. خدا یہی تو کہنا چاہتا ہے, لقائے اسباب, یعنی خدا سے ملاقات کا یہی تو اسباب ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑیں, اللہ کی طرف آئیں, اور اللہ نے جو کہا وہ کریں. بس جو اللہ نے کہا وہ کریں گے تو اللہ یہ اعزاز ہمیں دے گا, یہ تحفے ہمیں دے گا جو اب آج بیان ہوں گے. یہی تو خدا کہنا چاہ رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں جو پرائرٹی رکھی ہوئی ہے, پہلے دولت, مال, جمال, عزت, شہرت, منصب, خدا یہی تو کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کا مطلب خدا کے دل میں خدا نہیں ہے. خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نکالو, مجھے رکھو. یہ خدا کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کہتا ہے, اب آئیے وہی آپ کے سوال کا جواب اور آگے تمام مخلوقات پر مجھے ترجیح دو. بات وہی آ گئی, یعنی ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مخلوقات کے اندر بھی اگر ہم کسی ایسے کو ترجیح دے رہے ہیں خدا کے مقابلے میں, کسی کو ترجیح دے رہے ہیں, خدا کہتا ہے تمام مخلوقات میں مجھ پہ ترجیح ہو, میں ہوں میں, بس خدا, بس خدا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ کہے کہ مثال کے طور پہ, یہاں پہ میں فیملی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ موضوع فیملی ہے, کہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اچھا خدا کو یعنی تمام مخلوقات پہ ترجیح, خدا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں, اچھا ہم شوہر کو ترجیح نہیں دیتے, بچوں کو ترجیح دے. خدا نے کہا مجھے ترجیح نہیں. خدا کو جب ترجیح دے رہے اس کا مطلب یہ کہ اس خدا نے کیا بولا ہے کہ اس شوہر کی خدمت کرو,
बच्चों से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बात वहीं आ जाएगी। यानी ये जो काम इंसान कर रहा है वो खुदा की वजह से कर रहा है, तो मोहब्बत खुदा की होगी। यानी काम इलाही को भी मानना है। हाँ, तो वह काम इलाही को जब मानेगा जब खुदा दिल में होगा, जब दुनिया में किसी को तरजीह ना दे। खुदा कहता है तरजीह सिर्फ किसको दो? तमाम। जनाब इब्राहिम के लिए क्या था? यही था। जनाब इब्राहिम को इब्राहिम क्यों कहते हैं? इसमें 3-4 रवायतें अलग अलग है। एक रवायत तो आपने मारूफ सुन रखी है, कौन सी रवायत है? जनाब इब्राहिम को इब्राहिम क्यों कहते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम क्यों कहते हैं नबी? बहुत मारूफ रवायत है, बहुत। क्यों कहते हैं? नहीं, जनाब इब्राहिम को हबीब खुदा, खलील खुदा कहते हैं। क्यों खलील खुदा कहते थे? ये हाँ, क्यों कहते थे? क्योंकि हर चीज उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान। नहीं, रवायत नहीं कि वो बगैर दस्तरखान पे मेहमान के नहीं बैठते थे, इसलिए खलील कहते थे। एक रवायत में है कि इसलिए खलील कहते थे, गुफ्तार अंबिया किताब का नाम है, वहाँ पे मिलेगा आपको जनाब इब्राहिम के हालात में, कि इसलिए खलील खुदा कहते थे कि वो तमाम चीज़ों के यानी लोगों के ऊपर खुदा को तरजीह देते थे। यानी वही बात तमाम मखलूक़ात के ऊपर, यानी पहले खुदा का हुक्म, फिर बाद में दूसरों का हुक्म, या दूसरों की बात। हुक्म खुदा पहले, फिर बाद में दूसरी चीज़ें। तो हुक्म खुदा को पहले तरजीह देते। तो उसका नतीजा क्या हुआ? तमाम मखलूक़ात के ऊपर खुदा कहता है मुझे तरजीह दो। यानी आप हमारी अपनी ज़िंदगी में देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली ज़िंदगी में क्या करते हैं? हम इंसान को पहले, हाँ, नहीं इंसान को तो देते हैं, लेकिन देखिए अब इंसान से मुराद यहाँ पे बच्चे भी हैं, फैमिलीज। मैं इसलिए मिसालें दे रहा हूँ ताकि बात हम इनको करें मुकदम। लेकिन आप चले एक और मिसाल दे दूँ, बहुत आसान हो जाए। खुदा कहे ये काम करो, शौहर के काम नहीं करो, फ़र्ज़ करते हैं, तो किसको तरजीह देगा? खुदा को तरजीह देगा इंसान, क्योंकि हुक्म खुदा मानना वाजिब है। अगर फ़र्ज़ करें शौहर को ऐसा काम दे रहे जो हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो किसके हुक्म में तरजीह होगी? अल्लाह की। इसी तरह बच्चे कोई काम ऐसा कहें, मैं आपको और मिसाल दे दूँ, बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमें ऐसी शादी करनी है जिसमें मिस गैदरिंग हो, हमें ऐसी शादी करनी है जिसमें हिजाब कुछ भी ना हो। बच्चे कहते हैं या नहीं कहते? तो माँ बाप किसकी बात मानते हैं? बच्चे की मानते हैं। यहाँ पे अल्लाह को तरजीह नहीं देते। अल्लाह यही नहीं चाहता। यानी आपने अपनी मखलूक़ात के अंदर किसको तरजीह दिया? लोगों को तरजीह दी, औलाद को तरजीह दी खुदा के मुकाबिल में। ये मुराद है। और ज़िंदगी और मिसालें ले लें, दोस्त अहबाब जानने वाले कोई ऐसे अफराद, उनकी मिसालें भी आप ले सकते हैं कि कोई आपसे ऐसा काम कराए कि जो खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़ हो। आपने कहा चलो दोस्त कह रहे हैं तो कर लेते हैं, ख़ानदान वाले कह रहे हैं तो कर लेते हैं, ये अहबाब कह रहे हैं तो कर लेते हैं। ये सब ना हो, खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि तमाम मखलूक़ात के ऊपर तरजीह किसको हो? खुदा को। और वो कब पता चलेगा? जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता चल जाएगा कि आप किसको तरजीह दे रहे हैं। आपकी मैं शादी की मिसाल इसलिए ज़्यादा देता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा आराम होता है, इससे ये मिसाल ज़्यादा देता हूँ। प्रैक्टिकली तौर पे भी आप देख लीजिए, हर चीज़ है लेकिन हराम साथ साथ है। खुदा नहीं है वहाँ पर, अहले बैत नहीं है वहाँ पर, मासूमीन नहीं है वहाँ पर, शैतान है वहाँ पर। खैर, कहने का मकसद यही है कि जब इंसान अल्लाह को तरजीह देगा तो आप आगे देखें क्या क्या परवरदिगार देगा। यानी ये 7 चीज़ें तो दी हैं खुदा ने, कहा कि ये अफराद है जिनमें ये उनकी सिफ़ात हैं। 7 सिफ़त बयान की परवरदिगार ने। यहाँ आज रवायत में भी दूसरी जो रवायत बयान की इसमें भी 7 सिफ़तें आ गई। पहली वाली रवायत जो बयान की तो उसमें भी 7 सिफ़तें थी। अब अल्लाह क्या दे रहा है? 2 चीज़ें अल्लाह पहले दे चुका है। 2 चीज़ें अल्लाह ने पहले बयान की कि जानवर दाऊद से क्या कहा? हमने इसे रिजवान से खल किया है, और दूसरा क्या कहा? नूर रहमत से खल किया। ये 2 चीज़ें अल्लाह ने उनको दे दी। अब आइए मज़ीद खुदा क्या देता है। जब वो ऐसा कर लेता है तो मैं इस पर मेहरबान हो जाता हूँ। कैसा कर लेता है? ये 7 चीज़ों मान ले। जब कोई ऐसा कर लेता है तो मुराद क्या है कि जब ये सारे काम वो कर लेता है तो फिर अब खुदा कहता है कि दाऊद मैं क्या करता हूँ? पहली चीज़ तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो फिर इस पर पहली चीज़ क्या, मैं उस पर मेहरबान हो जाता हूँ। खुदा की मेहरबानी चाहिए, खुदा चाहे कि इंसान में मेहरबान हो तो ये काम अंजाम दे, और अपनी ज़ात को इसके लिए मखसूस कर देता हूँ। 2, अपनी ज़ात को इसके लिए मखसूस कर देता हूँ और अपने और इसके दरमियान तमाम हिजाब को उठा लेता हूँ। अब आप देखिए खुदा क्या क्या दे रहा है। अगरचे आप कहेंगे सख्त चीज़ें भी सख्त ले रहा है खुदा, मतलब चीज़ों से
से रोकने को मतलब। नहीं, ये काम अगर आप अंजाम देंगी, 7 चीज़ें अंजाम देंगी, तो अल्लाह आपको क्या क्या दे रहा है यूँ समझ लें। मिसाल के तौर पे चलने में और आपको बता, आपने क्या किया, नंबर 1 काम क्या किया, अल्लाह के लिए गुमान अच्छा रखा, 1। 2 क्या है, आपने दुनिया से किनारा कशी कर ली, वही 2। तीसरा क्या है, खलवत में आप मुनाजात भी कर रही हैं। 4 अहले दुनिया को छोड़ दिया। 5 दुनिया के अस्कार और ज़िक्र फरामोश कर दिया। 6 अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली भी कर दिया। 7 अपने तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह को तरजीह दी। ये 7 काम अगर आपने किए तो अब अल्लाह क्या कर रहा है कि अब मैं जनाब दाऊद से, ए दाऊद जो ये काम अंजाम देगा मैं ऐसा कर लेता हूँ, जब कोई ऐसा कर लेगा तो मैं उस पर नंबर 1 मेहरबान हो जाऊँगा, 2 अपनी ज़ात को इसके लिए मखसूस कर लूँगा, और अपने और उसके दरमियान तमाम हिजाब को हटा दूँगा, और यहाँ तक कि वो अपने दिल की आंखों से, यानी दिल की आंखों से मुझे इस तरह देखता है जिस तरह चीज़ों को देखा जाता है आंखों से, यानी बसीरत अता करूँगा। यानी खुदा कहता है कि अगर कोई ये काम करेगा तो वो मुझे इस तरह दर्क करेगा, यानी वो अपनी आंखों से, गोया समझाने के लिए परवरदिगार कह रहा है कि गोया वो मुझे इस तरह दर्क करेगा, यानी उसको ऐसी बसीरत दूंगा आंखों में कि जैसे दुनिया में हम आंखों से चीज़ें देखते हैं ना, वो मुझे भी ऐसे देखेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम करबला देख रहे हैं, हमें अल्लाह नहीं, वो मुराद नहीं है। वो भी हो, देखिए करबला तो एक ज़ियारत गाह है ना, यानी आपके अंदर इतनी बसीरत हो जाए, बसीरत खुदा आपको अता करेगा कि आप हक़ाइक़ से आगाह हो जाएंगी, हक़ाइक़ से आगाह हो जाएंगी, कि आपको समझने लगेगा कि ये मसलत परवरदिगार है, यानी आपको समझ में आ जाएगा हक़ाइक़, यानी बसीरत जैसे कैसे हैं, बसीरत परवरदिगार अता करेगा। यानी वो आँखें, जिस तरह आप आँखों से, ये मैं आँखों से क्या देख रहा हूँ, सामने एक कैमरा है, आँखों से क्या देख रहा हूँ, ये डैग है, आँखों से देख रहा हूँ ना, लेकिन वो हक़ाइक़ परवरदिगार नहीं देख रहा हूँ, अभी नहीं देख रहा। लेकिन अगर ये 7 काम अंजाम दूंगा तो वो हक़ाइक़ परवरदिगार भी खुदा मेरे को ऐसे दिखाएगा, यानी वो चीज़ मेरे लिए ऐसे रोशन हो जाएगी जैसे ये चीज़ें रोशन है, यानी मुझे बसीरत अता करेगा। इसको कहते हैं बसीरत अता करना, खुदा बसीरत देता है, ठीक है। उसके बाद खुदा कहता है, ए दाऊद अगर मेरे बारे में तदब्बुर करने वालों को इल्म हो जाए, जो मेरे मुतालिक तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनको अगर इल्म हो जाए कि इनका, क्योंकि मैं मुंतज़िर हूँ, खुदा जानता है कि मैं इनका मुंतज़िर हूँ और इस कदर मेहरबान हूँ, किन पर, इनके लिए, यानी अगर ये जो अफराद जो हैं तदब्बुर करने वाले अफराद को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं इनका मुंतज़िर हूँ और इस कदर मेहरबान हूँ और इनके तर्क मासी का किस कदर मुश्ताक़ हूँ। यानी खुदा क्या देखना चाहता है, तर्क मासी का मुश्ताक़ हूँ, यानी खुदा कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मुश्ताक़ हूँ कि गुनाह को कैसे छोड़ते हैं। मैं मुश्ताक़ हूँ इस बात का कि तर्क गुनाह को कैसे छोड़ते हैं, मैं मुंतज़िर इस बात का, मुश्ताक़ हूँ इस बात का, इंतज़ार में हूँ कि ये तर्क मासी का किस कदर मुश्ताक़ हूँ, यानी ये मैं चाहता हूँ कि ये गुनाहों को छोड़ें, मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, इसका मैं मुश्ताक़ हूँ, इसका मैं मुंतज़िर हूँ। तो वो मेरे इश्तियाक में फ़ौरन मौत को गले लगाएंगे। यानी अगर इंसान को ये पता चल जाए कि खुदा कितना मुश्ताक़ है हमारा दीदार का, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या समझ में आ रही है? थोड़ी मुश्किल है वैसे, नहीं माशाल्लाह अच्छी, समझ में आ रही है? तो जवाब एक का आ रहा है, बाकी का तो जवाब आ ही नहीं रहा। जी वैसे समझ में आ रही है, कुछ गुफ्तगू समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 7 चीजें करो, फिर अल्लाह को देखो कि अल्लाह क्या चाहता क्या चाहता है, यही है। फिर अल्लाह आगे कह रहा है, खुदा जनाब दाऊद से कहता है, ए अगर मेरे बारे में तदब्बुर करने वाले, यहाँ से दूसरा जुमला है, यानी फिर वो रहमतें आप पे नाज़िल वो सब चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, खुदा मेहरबान हो जाएगा। उसके बाद अपनी ज़ात को, खुदा कहता है मैं अपनी ज़ात को इनके लिए मखसूस कर दूंगा। जैसे हमारी तो एक ज़ात है ना, हम दुनिया में समेटते हैं उसको, जैसे गुनाहों को मतलब दूर करते हैं अपने आप से, तो अल्लाह कहता है मुझे भी अपनी ज़ात, मेरी ज़ात को तलाश करो। नहीं, ये नहीं कहता। ऐसे खुदा कहता है मैं अपनी ज़ात को तुम्हारे लिए मखसूस कर दूंगा, मखसूस कर दूंगा। अगर तुमने ये 7 काम किए तो मैं मेहरबान हो जाऊंगा। हाँ, ये भी हो सकता है, तुम चाहोगे वो नहीं होगा, ये नतीजा नहीं है, लेकिन खुदा क्या देना, पहला मेहरबान। अब खुदा की मेहरबानी हम पर हो जाएगी, वो नेमतें मिलेंगी खुदा की तरफ से, मेहरबान हो, खुदा मेहरबान होगा तो क्या देगा, लुत्फ़ व करम करेगा, यही करेगा। फिर उसका कहा मैं अपनी ज़ात को तुम्हारे लिए मखसूस कर दूंगा, यानी मेरी, खुदा कहता है मेरी ज़ात अब तेरे लिए,
मेरी ज़ात अब तेरे लिए, ताकि तूने ये काम अंजाम दिया, गुनाहों की तरफ राग़िब भी नहीं होगा, राग़िब भी नहीं होगा, यानी अल्लाह की मर्जी में हासिल हो जाएगी। मुमकिन है। यानी बहुत सारी चीज़ें खुदा कहता है मैं अपनी ज़ात में, मेरी ज़ात तेरे लिए मखसूस कर दूंगा। अब खुदा अगर खुद इसके लिए ज़ात मखसूस कर देगा तो इंसान यानी किस बाले मकाम पर होगा, किस बुलंद मकाम पर होगा, ये खुदा कहता है। फिर बाद में खुदा क्या कहता है, फिर उसका तीसरी चीज़ क्या है, खुदा तीसरी चीज़ क्या देता है कि मैं उसको बसीरत दे दूंगा, उसको बसीरत दूंगा। वो जैसे दुनिया की चीज़ों को देखता है आँखों से, इस तरह वो इस तरह देखता है जिस तरह दुनिया, उसके दिल को उसको यानी अपने दिल, यानी वो देखता है जिस तरह वो दुनिया की चीज़ों को देखता है, उसके अंदर ये बसीरत पैदा कर दूंगा। यानी दिल की आंखों से वो मुझे देख सकेगा, दिल की आंखों से वो मुझे पहचान सकेगा, महसूस कर सकेगा। यूँ बहरहाल फिर उसके बाद खुदा कहता है कि जो मेरे बारे में तदब्बुर का इल्म रखते हैं, इल्म हो जाए, जो लोग ए दाऊद अगर मेरे बारे में जो तदब्बुर करते हैं, जो खुदा के मुतालिक तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, अब उनके खुदा कहता है कि उनको अगर इस बात का इल्म हो जाए, किस बात का इल्म हो जाए, कि इस बात का इल्म हो जाए कि मैं मुंतज़िर हूँ, उनका मुंतज़िर हूँ, इस कदर उन पर मेहरबान भी हूँ, और इनके तर्क मासी, यानी ये जो तर्क गुनाह करते हैं, इस तर्क मासी का किस कदर मुश्ताक हूँ। यानी खुदा कहता है मैं मुश्ताक हूँ देखने का, दीदार हूँ कि गुनाह को छोड़ दें। फिर खुदा कहता है तो वो मेरे इश्तियाक में फ़ौरन मौत को गले लगाएंगे। जब ये मारिफत इंसान के अंदर पैदा हो जाएगी कि खुदा मुझे देखने का मुंतज़िर है, खुदा मेरी मुलाकात का मुंतज़िर है, जब मैं इस बात की मारिफत पैदा कर लूँगा तो मौत मेरे लिए कुछ भी नहीं कहूँगा। परवरदिगार अब मौत आए तो अब मैं चाहता हूँ कि मौत आए, क्योंकि खुदा मुझे इस बात का इल्म हो गया कि खुदा मुझसे मिलने में तैयार है, यानी मुलाकात के लिए बेचैन है, बेकरार है। खुदा कहता है मुंतज़िर हूँ। तो उस वक्त इंसान क्या करेगा, उस वक्त कह रहे हैं खुदा कहता है वो मौत को गले लगाएगा और मेरी मोहब्बत में इसका बंद जुदा हो जाएगा, यानी जिस कहते हैं जोड़ जुदा हो जाएगा। ये आज की एक रवायत थी कि जो लिकाउल्लाह के असबाब थे, यानी इसके मैंने कहा ना इसके ये कंप्लीट नहीं है, इसके आपको जो जवाब मज़ीद सवाल आपके जहन में जो मज़ीद सवाल अगर आए तो आप मीज़ानुल हिकमा जिल्द 8 तकरीबन सफ़ा नंबर 800 के बाद देखिएगा, लिकाउल्लाह की बहस है वहाँ जाके आपको सवाल के जवाबात मिल जाएंगे। तो मैंने मुख्तसर बयान रखा था, फिर आप अब रवायत का हम तीसरा हिस्सा बयान करते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।